સહારા વિના બીજ ઉગતું નથી. સહારા વિના બીજ ઉગતું નથી. હરે ઓજી દાદાજી, હરે હોજી દાદાજી, તમારા વિના ક્યાંય ગોઠતું નથી. તમારા વિના ક્યાંય ગોઠતું નથી. જગત કુસંગે જ દુઃખ, જગત કુસંગે જ દુઃખ, કેવલ સત્સંગે જ સુખ. કેવલ સત્સંગે જ સુખ. દાદાજીનું હસતું મું, દાદાજીનું હસતું મુખ, શમને દર્શન થાતા સુખ. સમણે દર્શન થાતા સુખ. હીરા મોતી મહારાજે, હીરા મોતી મહારાજી, સમૃદ્ધ સત્યા વિના ડગલું ઠરતું નથી. સમૃદ્ધ સત્યા વિના ડલડું ઠરતું નથી. હરે ઓજી દાદાજી, હારે હોજી દાદાજી, તમારા વિના ક્યાંય ગોઠતું નથી. તમારા વિના ક્યાંય ગોઠતું નથી. દુનિયાભરમાં લુખો લાગે, દુનિયાભરમાં લુખ્ખું લાગે, સત્સંગ વિના સૂનું લાગે. સત્સંગ વિના સૂનું લાગે, વિરહુ દિવસ રાત જાગે, વિરહો દિવસ રાત જાગે, જ્ઞાની ભવની ભાવટ માંગે. જ્ઞાની ભવની ભાવટ ભાંગે, રોકો અતિક્રમનાજી, રોકો અતિક્રમણાજી, આતમ રમના વિના ક્યાંય રૂચતું નથી. આત્મ રમણા વિના ક્યાંય રૂચતું નથી. હારે ઓજી દાદાજી, હારે હોજી દાદાજી, હરે ઓજી પ્યારાજી, હારે હોજી પ્યારાજી. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ કે ત્રિમંત્ર આપણે નવ કલમો બોલાવીએ. દિવ્યાબેન નવ કલમ આવડે છે? ઓકે, પપ્પા બોલશે. ઓકે, શ્રેયા 1, પપ્પા 2, મોનિકા 3. શ્રેયા. હે સચ્ચિદાનંદ, હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ દેધારી જીવાત મને કિંચિત માત્ર પણ અહમ ન દુભાય ન દુભાવાય કે દુભાવવા પ્રત્યે ન અનમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. મને કોઈ પણ દેધારી જીવાત મને કિંચિત માત્ર પણ અહમ ન દુભાય એવી સ્યાદવદ વાણી, સ્યાદવદ વર્તન અને સ્યાદવદ મનન કરવાની પરમ શક્તિ આપો. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ ધર્મનું કિંચિત માત્ર પણ પ્રમાણ ન દુભાય ન દુભાવાય કે દુભાવા પ્રત્યે ન અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. મને કોઈ પણ ધર્મનું કિંચિત માત્ર પણ પ્રમાણ ન દુભાવાય એવી સ્યાદવાદ વાણી,
સ્યાદવાદ વર્તન અને સ્યાદવાદ મનન કરવાની પરમ શક્તિ આપો. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ દેહધારી ઉપદેશક, સાધુ, સાધ્વી કે आचार्य अवनवाद, अपराध, अविनय ना करने की परम शक्ति आपो. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ નિર્ધારિત જીવાત્મા પ્રત્યે કિંચિત માત્ર પણ અભાવ તિરસ્કાર ક્યારેય પણ ન કરાય, ન કરાવાય કે કરતા પ્રત્યે ન અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્મા સાથે ક્યારેય પણ કઠોળ ભાષા, તંતીલી ભાષા ન બોલાય, ન બોલાવાય કે બોલવા પ્રત્યે ન અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. કોઈ કઠોળ ભાષા, તંતીલી ભાષા બોલે તો મને મૃદુ રુજુ ભાષા બોલવાની પરમ શક્તિ આપો. हे दादा भगवान, मैंने कोई पण देहधारी जीवात्मा के प्रति स्त्री पुरुष अगर नपुंसक गमे તે લિંગધારી હોય તો તેના સંબંધમાં કિંચિત માત્ર પણ વિષય વિકાસ સંબંધી દોષો, इच्छाओं, चेष्टाओं या विचार संबंधी दोषों न किया जाए, न करवाया जाए कि कर्ता के प्रति न अनुमोदाय एवी परम शक्ति आपो. મને નિરંતર નિર્વિકાર રહેવાની પરમ શક્તિ આપો. ભગવાન, મને કોઈ પણ રસમાં લુપ્તપણું ન કરાય એવી શક્તિ આપો. તો મને શી ખોરાક લેવા એવી પરમ શક્તિ આપો. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્માનો પ્રત્યક્ષગર પરોક્ષ, જીવંતગર મૃત્યુ પામેલાનો કોઈનો કિંચિત માત્ર પણ અવણવાદ, અપરાધ, અવિનય ન કરાય, ન કરાવાય કે કરતા પ્રત્યે ન અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. હે દાદા ભગવાન, મને જગત કલ્યાણ કરવાનો નિમિત્ત બનવાની પરમ શક્તિ આપો, શક્તિ આપો, શક્તિ આપો. જય સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ. દિવ્યાબેન ત્રિમંત્ર બોલાવશો, અમે ફોલો કરશું. નમો વિઠ્ઠલાગાય. નમો નમો વિપ્રાગાય. નમો અરિહંતાનમ. નમો નમો હરિ અરિહંતાણમ. નમો સિદ્ધાનમ. નમો નમો સિદ્ધાણમ. નમો આયરિયાનમ. નમો નમો આર્ય આયરિયાણમ. નમો વજ્જાયાનમ. નમો વજ્જાયાનમ. ઉજ્જાયાણમ. નમો લોએ છવચાવનમ. નમો લોય સવ સાવણમ. યાચો પંચનમ કાલો. એસો એસો પંચમુખારો. પંચમુખારો. તુવ પાવ ફનાચનો. સવ સર્વપાવપનાસનો. મંગલમ ચ ચૌવચમ. મંગલાણમ ચ સર્વેશિ. ફલમ હવૈ મંગલમ. પરમં પવૈ મંગલમ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. ઓમ ઓમ નમઃ શિવાય. શિવાય. જય સચ્ચિદાનંદ. जय सच्चिदानंद. मोदी का कोई दूसरा आने वाला है? हाँ, खुशी है ना, अच्छा, किधर गुम हो गए? यही पर है. ओके ओके. जय सच्चिदानंद. जय सच्चा डेली प्रेयर. हाँ, जय सच्चिदानंद. हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं अपनी हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज ना करूं, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे देह को यानी कि पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक बने. मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी. मैं बुरी सोबत से और सत्संग से हमेशा दूर रहूंगी. और कुछ भी हो, मेरा सत्संग कभी भी ना छूटे, ऐसी परम कृपा करना. प्राप्त मन वचन काय कयो और अपने आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी कि जीव मात्र की सेवा नहीं करूं, जो कि श्रेष्ठ मानव धर्म है. मैं अपने स्वयं और अन्य सभी लोगों के साथ के जीवन व्यवहार में मॉरल सिंसियर प्यार बनी रहूंगी.
ताकि मैं बराबर दादा भगवान के जैसे उत्कृष्ट व्यक्तित्व की मानवी बन पाऊं। हे दादा भगवान, मैं आगे अपनी माता पिता की हर बात सुनने की संकल्प लेती हूँ। मैं उनको अहंकार से जवाब नहीं दूंगी। कृपया इस संबंध में मुझे अनंत आंतरिक शक्ति प्रदान करें। जय सच्चिदानंद। prayer. हाँ जय सच्चिदानंद। ये दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में समझने में जो भी बाधाएं अंतराय आते हैं, जो भी ऑब्स्ट्रक्शन आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करती हूँ। आप ऐसी कृपा करें कि जिससे मेरे दर्शन पर के आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो। ऐसे आप मुझे परम शक्ति दें। जय सच्चिदानंद। दिव्याबेन, हमने आपके हे दादा भगवान, हे हे दादा दादा भगवान, भगवान, हमने आपके बच्चे, हमें आपके हे बच्चे, बच्चे, दिल के है सच्चे, दिल के हैं है सच्चे, सच्चे, फिर भी है कच्चे, फिर भी फिर भी है है कच्चे, कच्चे, काम करेंगे अच्छे अच्छे, काम काम करेंगे करेंगे अच्छे अच्छे। वेरी गुड दक्ष। ఈశ్వరాత్మక పలుగు దక్షిణగే ఈశ్వరాత్మక परमानेंट दक्ष टेम्पररी ఈశ్వరాత్మక प्रियालो दक्ष रिलेटिव है जय सच्चिदानंद। દિવ્યાબેન સેપરેશન પ્રેયર આવડે છે ગુજરાતીમાં? ઓકે, જો શ્રેયાબેન બોલશે તમે સાંભળજો. ઓકે શ્રેયાબેન. हाँ जय सच्चिदानंद। हे शुद्धात्मा दादा भगवान, તમે જુદા છો, શ્રેયા જુદી છે। હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે રિયલ છો, શ્રેયા રિલેટિવ છે। હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે પરમનન્ટ છો, શ્રેયા ટેમ્પરરી છે। જય સચ્ચિદાનંદ। દાદા ભગવાન ક્યાં છે શ્રેયા આપણે દિવ્યાબેન? Mavidete tulama, શું કહ્યું? mavidete tulama, શું કહ્યું શ્રેયા? આ વિદ્યા ક્ષેત્રમાં હે? હા, નહીં દાદા ભગવાન દિવ્યાબેન. દિવ્યાબેન, શ્રેયાબેન, દાદા ભગવાન ક્યાં છે તમારા દાદા ભગવાન? આપણી અંદર વેરી ગુડ, તમારી અંદર છે. ઓકે દિવ્યાબેન, દાદા ભગવાન આપણી અંદર છે. ओके ओके, आज 3 दिन कैसा रहा? डेली एक्टिविटीज का सिंसियरिटी। मोनिका दीदी जय सच्चिदानंद। मैंने जोर से बोलो, हमको सुनाई नहीं देता है। अभी सुनाई दे रहा है? हाँ बोलिए। हाँ, मैंने 3 दिन में सैटरडे संडे को मैं जल्दी नहीं उठी थी, मैं लेट उठी थी। और साथ ही मुझे सैटरडे संडे को बहुत आलस आई क्योंकि ठंड थी और मुझे बहुत सोने का मन कर रहा था। और मैंने स्टडीज भी ठीक ढंग से नहीं की और एक्सरसाइज भी नहीं की। तबीयत अच्छी नहीं थी? तबीयत अच्छी थी बट वो ठंडा था इसलिए सोने का मन कर रहा था। ठंडी बहुत है चेन्नई में? हाँ वो कल बारिश है कह रहे हैं इसलिए ठंड है आज। ये तो बहुत टाइम वेस्ट हो गया। ओके, हाँ। खुशी दीदी जय सच्चिदानंद। मैंने 3 डेज में सुबह सैटरडे संडे को मैं सुबह जल्दी नहीं उठी थी। एक्स्ट्रा स्टडी मैंने कंप्लीट नहीं की थी। मैंने होमवर्क ही किया था स्कूल का दिया हुआ। और मैंने आज एक्सरसाइज नहीं की थी, सुपर ब्रेन योगा वो रह गई है, सोने से पहले कर दूंगी। हाँ, जो वीकेंड में किया था सैटरडे संडे। हाँ ओ वेरी गुड। श्रेया दीदी हाँ जय सच्चिदानंद। सैटरडे संडे को उठने में मेरा डी था, मैं नहीं उठ पाई थी ठंडी की वजह से। और मैंने एक्स्ट्रा स्टडी की थी और मेरा एक्सरसाइज भी हो गया था। ठंडी होती तो खाने का बंद हो सकता है?
काम नहीं कर सकते तो खाने का मन हो गया था? हाँ। खाने का बंद हो गया था सारा दिन? श्रेया, हाँ। हाँ। आप बोला? मोनिका दीदी, अ, खाना तो खाते हैं तोरल दीदी। हमेशा ब्रेकिंग में अभी मैंने एक्स्ट्रा स्टडी की थी और मैंने एक्सरसाइज की। दक्ष भैया। हाँ, जय सच्चिदानंद। मेरा हाँ, मेरा दिन वीकेंड में एक संडे को ए ग्रेड था और सैटरडे को डी ग्रेड। और मैंने डेली ब्रेकफास्ट मेरा ए ग्रेड था। हाँ, और मेरा नहीं सैटरडे ऐसे को ले। बोल, हाँ। ऐसे जनरलाइज करने का। ओके। हाँ। एक्सरसाइज होते। ओके। हाँ। दिव्या बेन, સૂર્ય નમસ્કાર તમને ખબર છે? हाँ। તમે કરો છો એવરીડે? હું નહીં કરતી પણ પપ્પા કરે છે. તો પપ્પા સાથે કરવાનું રાખો. ઓકે. ઓકે. અને સુપર બ્રેન યોગા ખબર છે તમને? હા, ખબર છે. તમે કરો છો? હજી નહીં કરી. ઓકે. પપ્પા કરે છે? ના, એમને કામ પર જવાનું હોય ને વહેલું વહેલું એટલે પછી. તો સાંજને તો તમારે કામમાંથી આવે તો તમારે બંને સાંજે કરવાનું. ઓકે. ઓકે. એવરીડે ઓકે. પપ્પાને કહેવાનું ચાલો આ બે એક્સરસાઇઝ કરવાની છે. બરાબર? બરાબર. ओके, वेरी गुड, जय सच्चिदानंद। ओके। देखो बच्चों लोग, ये आप नहीं करते तो उसका कुछ पेन होता है कि नहीं? होता है. तो होता है तो ये क्या लिखा है? कोई पढ़ो जोर से। श्रेया, जोर से पढ़ो। Pain. Every pain gives a lesson, and every lesson gives and every lesson changes a person. इसका हिंदी करो प्रदीप दादा के लिए। मोनिका, क्या कहा? प्रदीप दादा के लिए हिंदी में ट्रांसलेट करो। अ, हमें जिस चीज में हमें दुख होता है, उसमें दर्द होता है, वो हमें एक समझ आती है और वो हमें लेसन की तरह अपनी मिस्टेक से हमें सीखने को मिलता है। जो हम मिस्टेक से नो 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 सीखते नो, हैं। जस्ट ट्रांसलेट। अक्षय काका है? दिव्या बेन? हाँ। हाँ, अक्षर भाई गुजराती में ट्रांसलेट करो प्रदीप प्रदीप आनंदजी में। દરેક દરેક પીડા આપણને પાઠ ભણાવે છે. દરેક પાઠ વ્યક્તિને બદલી કાઢે છે. थैंक यू। See, this is called translation। मोनिका दीदी, अब हिंदी में करो। हर दर्द हमें सिखाता है और वो दर्द हमें उस जो हमने सीखा था वो हमें वर्जन में बदलता है। ओके। तो अभी डेली सिंसियरिटी में किसी को दुख होता है? हाँ बोला ना बोला किसी ने? मोनिका जल्दी जल्दी बोलो। जाओ। मुझे जब मैं नहीं, हाँ, एक्स्ट्रा स्टडी जब पूरी नहीं होती तब दर्द होता है। बात की बात नहीं है।
जो कुछ पेन होता है खाली एक्स्ट्रा स्टडी के लिए होता है आपको? नहीं, क्या कहा? आपको पेन किसका दुख होता है नहीं होता है तो ओवरऑल एक वीक में देखेगा? ठीक। खुशी? um, मैं जब सत्संग नहीं करती हूँ तब मुझे दर्द होता है। आज नहीं हुआ है। होता है, रियली होता है, ये क्या बोलता है? एवरी हाँ। लेसन चेंजेस ए पर्सन। आप चेंज हो गया उसमें से? um, नहीं हो? ओके। पर- प्रदीप दादा ये बात करो कि जिसके ऊपर दुख होता है, जिसके ऊपर अच्छा नहीं लगता है, वो लेसन है और बाद में चेंज होता है फिर। प्रदीप दादा, अच्छा, हाँ इसके बारे में बात करो। क्या बताने का है? शुगर? किसके बारे में बताने का है उन लोगों को? जो डेली एक्टिविटी नहीं हो पाती है हाँ। तो उस पे दुख होगा, तो आ, ये आ, ये क्या नाम भूल गया, ये प्रेसिडेंट का, बोलते हैं कि उसमें से पार्ट मिलता है, तो पार्ट मिलता है तो आदमी चेंज करते हैं। हम्म। तो इन लोगों को ये डेली एक्टिविटीज देखो, किसी को एक प्रॉब्लम है, आ, मोनिका को एक प्रॉब्लम, श्री आपको कुछ है प्रॉब्लम? नहीं, डेली एक्टिविटीज। ओके, आपको तो सब ये आते हैं। तोरल आपको? क्या? अब नहीं सुनते? मैं ये सुन रही डेली एक्टिविटीज जो कोई क्या चीज नहीं हो पाती है रेगुलरली? मैं समझी नहीं। एक ही चीज है मोनिका, ओनली वन थिंग? मोनिका, हाँ। ओनली वन थिंग? नहीं है हाँ मुझे। तो, हाँ तो उसको देखो। तो प्रदीप दादा, इन लोगों को दुख नहीं होता है तो वो चेंज नहीं पाता है। तो ये दुख प्रेसिडेंट बोलता तभी है कि होता है। वही दुख होता है तो चेंज होएगा। दुख तभी होता है कि हमें उनकी सही कीमत समझ में आवे कि आज मैंने पढ़ाई अच्छी तरह से नहीं की अथवा जो मैंने डिसाइड किया था वो नहीं हुआ, तो उनकी जो वैल्यू है, उनकी जो कीमत है, वो जब समझ में आती है वो हिसाब से उनको पेन होता है। जितनी जैसी समझ इतना पेन होता है। और ऐसा हो गया है कि नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, तो पेन का सवाल ही नहीं आता है। बराबर? हाँ। बात समझ में आया? और दूसरा, और हम चेंज कभी होते हैं तो कि हमें ये पूरे जो परिस्थिति है उसका पूरा हमें अभ्यास हो कि भाई ये काम क्यों नहीं हुआ, कैसे ये गड़बड़ हो गई, तो फिर वो उसमें सुधार कर सकता है। लेकिन जो उनकी अलर्टनेस नहीं है, जो उनको ये चीज दिखती नहीं है, तो फिर वो नहीं कर पाएगा। समझ में आया? जैसे हाँ। कि हम खड्डे में गिरना नहीं चाहते, लेकिन हम स्पीड से चलते हैं और खड्डे में गिरे तो फिर जो हमें थोड़ी बहुत अनसेफ हो गए, तो फिर हमें उस समय समझ में आ जाता है कि अगर गिर गया होते तो अपने को बहुत बड़ी चोट आती। तो अपने दूसरी बार ध्यान रखना है। बराबर? दूसरा, जब ज्यादा बुद्धिमान होता है वो खुद को अंदर तलाश करता है, झांकता है कि इतना जल्दी जाने की क्या जरूरत थी, अपने को सोच समझ के साथ चलना चाहिए। तो फिर वो कैसे नॉर्मलिटी में रहने का, कैसे जागरूक रह के चलने का,
वो उनको सब फिर उनके अंदर सिस्टम अपने आप डेवलप हो जाती है। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि पेन तभी होता है कि इंसान को ये जब बात समझ में आवे कि जो ये मैंने किया इससे मुझे ज्यादा नुकसान हो गया, तो मुझे ये नहीं करना चाहिए, अगर मुझे इस सिस्टम से चलना चाहिए। जब तक समझ नहीं है, उनकी वैल्यू समझ में नहीं आती है, तब तक कोई भी आदमी उसमें सुधार आना बहुत मुश्किल है। और कहने से सुधार आता है वो सुधार नहीं है, लेकिन खुद इंसान, स्टूडेंट्स खुद जब खुद को झांकता है और खुद के लिए जब सोचता है और देखता है, तो इमीडिएट एक्शन में आ जाता है। क्या होता है, क्योंकि जो उनको पता चलता है कि मेरी सिंसियरिटी में कमी आ गई, इससे मुझे नुकसान बहुत हो गया, उसको हार्ट में चोट आती है। कहाँ चोट आती है? हार्ट में। हम्म। फिर वो भूलेगा नहीं, उसका पूरा प्लानिंग करेगा कि कैसे अभी करना है, किसी भी हालत में मुझे ये करना है बस, क्योंकि उसका ध्येय होता है। लेकिन जब तक वो समझ की कचास है, कोई कहेगा और हम करेंगे, कोई करेगा, वो जो लंबा नहीं टिक सकता है। हर एक इंसान को खुद ही खुद को झांकना चाहिए, सोचना चाहिए, फिर आगे बढ़ना चाहिए। उसके अलावा रास्ता नहीं है कोई। वो जो रास्ता है कोई बताएगा, कोई बोलेगा, तो थोड़ा टाइम टिक के लिए ठीक है, लेकिन उसमें हार्ट नहीं होगा। क्या नहीं होगा? लेकिन जब और ये चीज आ गई कि मुझे एक भी मिनट वेस्ट नहीं करनी है, बस आई एम रिस्पॉन्सिबल, मेरा खुद का नुकसान हो ऐसा काम मुझे करना नहीं है, वो जब बात समझ में फिट हो गए, फिर उनको सिंसियरिटी के लिए बोलना नहीं पड़ता है। वो कभी भी वो समय समझो उन्होंने जो डिसाइड किया वो समय पे नहीं हुआ, तो दूसरे समय में भी वो कवर कर लेता है। बात समझ में आई? समझ में आया? हाँ। क्या समझ में आई खुशी? हमें दुख जब हमें दुख तब होता है कि हमने हमें लाइक उस थिंग को वैल्यू नहीं किया। अभी मैंने सत्साधन नहीं किया तो मुझे उसकी वैल्यू नहीं है, इसलिए मैंने नहीं किया। और ओके, आपको आपको वैल्यू है सत्साधन का? है, बट वो आलस की वजह से मुझे ज्यादा नहीं ना, दिखती उस वैल्यू है तो क्या वैल्यू है सत्साधन का? ये इम्पोर्टेंट है, इससे हमारी कंसंट्रेशन पावर ज्यादा होती है, और दादा के मार्ग में हमें आगे भी ले जाएगा। वेरी गुड। मोनिका दीदी, आपने समझा? मुझे जिस चीज में भी मैं वैल्यू नहीं करती हूँ उसमें मुझे अभी भी मैं उसमें कच्ची हूँ, बट मैं सिंसियर रहूंगी और साथ ही उसको वैल्यू करूंगी, और सत्साधन हर रोज करूंगी, और एक्स्ट्रा सब्जेक्ट और वीक स्टडी जिसमें भी मैं वीक हूँ उसमें मैं टाइम भी दूंगी। नहीं करेगा तो क्या फायदा होगा? नहीं करूंगी तो मुझे एग्जाम में दिक्कत होगी, लास्ट मोमेंट में रिवीजन का टाइम नहीं होगा। और तो ये तो सब राइट ही बात करते हैं, इम्प्लीमेंट कब करेगा अभी देखेंगे। ओके। और हाँ, खुशी खुशी और आपका रिजल्ट आया कि नहीं है किसी का? आया, आ गया। नहीं भेजने का है? भेजने का कब? सत्संग के बाद। कब कब? नेक्स्ट ईयर? नहीं, सत्संग के बाद। कब आया रिजल्ट? जैन 2, जैन 3, तो जैन 6, जैन ओके। 6 को। और छोटी का कैसा है रिजल्ट?
छुट्टी का सभी सब्जेक्ट में ठीक है, बट तमिल में फिर से सब में फेल हुए? नहीं। तमिल में सभी में ठीक है, बट तमिल में फिर से फेल हो गए। तो एक सब्जेक्ट में फेल हो गए। हाँ, सिर्फ एक सब्जेक्ट, दूसरे सब्जेक्ट में वो अच्छी है, बट वो तो तमिल वो में कॉन्सेंट्रेट। पढ़ाई नहीं करते तो ही अच्छा है। वेरी गुड। ओके श्रेया, क्या बताया प्रदीप दादा? प्रदीप दादा ने ये बताया, जो जो हमको समझ आएगी तो हमको दुख होगा और हमको इम्प्रूवमेंट करनी है। और जब हम किसी भी। नहीं, इम्प्रूवमेंट हो जाएगा ऑटोमेटिक। हाँ। ओके, आपको तो कुछ करने का नहीं है ना। ओके, वेरी गुड। अक्ष, हाँ, जैसे कि प्रदीप दादा ने ये बताया, जैसे मैं जल्दी उठता नहीं हूँ, तो मुझे उसकी वैल्यू नहीं है कि मैं जल्दी उठता नहीं हूँ। तो आप नहीं, क्या वैल्यू है? आप लेट नहीं होता है, जल्दी नहीं होता है तो? अ, मैं मैं स्कूल के लिए लेट हो जाता हूँ कभी कभार। तो चलता है, टीचर जाने देते हैं स्कूल में? मतलब दादा हमारे स्कूल में सेकंड 2 गेट्स है, तो एक गेट थोड़ा जल्दी बंद होता है और एक गेट थोड़ा लेट। तो चलता है स्कूल में। हाँ, चलता है। और इसलिए आप लेट होते हैं। ओके। ओके, सो बच्चे लोग देखो, आपने ये आपका जो वीकनेसेस है, आपका कमजोरी है डेली एक्टिविटीज में, जरा दो चार, दो तीन, वट एवर इट इज, पिक करके प्लीज चेंज चेंज योर सेल्फ। ओके। 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 और चलो, प्रदीप दादा, आप बोलने का है, कुछ ऐड करने का है? नहीं, वो जो अपने वो बोलते थे ना कि वो सत साधन के बारे में, तो सत साधन जो है ना, वो ज्ञानी पुरुष की आज्ञा का है। वो हम आज्ञा का पालन करते हैं। तो ये सत साधन करने से हमें पहला फल आज्ञा का मिलता है। तो इसीलिए उनकी वैल्यू बहुत है। तो और दूसरी जो चीज है, वो सत साधन ऐसी चीज है कि वो हमें विनय भी आ जाता है, और दूसरा नेगेटिविटी से हमें दूर रखता है, जिसे नव कलम नमस्कार विधि वो विनय बताता है। और तीसरा जो शुद्धात्मा के प्रति प्रार्थना है, वो कन्फेशन जो है कि जो अगर हमारे जीवन में जो जो भी गलती हो गई है, तो हम हार्टिली प्रेयर क्षमा चाहते हैं। वो शुद्धिकरण प्रोसेस है कि गलतियों से मुक्त होना है। तो जो भी चीज है, फिर वो स्टडी में हो, खाने पीने की बात हो, कपड़े की बात हो, फ्रेंड सर्कल की बात हो, धर्म की बात हो, हर चीज को हमें सही ढंग से समझना चाहिए और समझने की जरूरत है। तो हमें डिसीजन अपने आप ले सकते हैं कि मुझे क्या करना है। लेकिन जितनी समझ कच्ची होगी, इतना हमें नुकसान ही आएगी। जितना परफेक्शन होता जाएगा, इतना फायदा होता जाएगा। इसीलिए दादा भगवान ने बताया कि भगवान और भगवान के बाद कोई भी इसमें कोई कर्ता और रिस्पॉन्सिबल नहीं है। और दादा भगवान ने बताया कि यू आर होल एंड सोल रिस्पॉन्सिबल। जो हमें नुकसानी होती है, कम मार्क्स आती है तबियत के बारे में, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फिर निमित्त कोई भी हो। लेकिन ज्यादा तक हमारी कुछ न कुछ गलती होती है, तभी ये सफरिंग का संयोग आता है।
इसीलिए हमें बहुत समझ के साथ जीवन जीना चाहिए। समझ में आया? हाँ। ज्ञानी पुरुष होते ही नहीं है, और होते हैं तो मिलते नहीं है, और उनकी आज्ञा की तो बात ही कहां पर दूर रह गई। अगर हम सबको जो ये आज्ञा मिली है, दादा भगवान ने खुद ने बताया था कि ये आपको प्रेयर करना है। जो अगर आपको सुखी होना है, आपको आगे बढ़ना है, आपको प्योर होना है, तो ये चीज करने जैसी है। अब समझ में आया? इसलिए फर्स्ट बेनिफिट आज्ञा का है, दूसरा बेनिफिट सिंसियरिटी का है, तीसरा बेनिफिट जो है वो खुद का अंदर जो चेंजेस आता है, मीन्स प्योरिटी, फिर बाद में जो एनर्जी, कंस्ट्रक्टिविटी, वो सब अंदर डेवलप होती जाती है। विनय, वो सब हमारे में ये गुण डेवलप होता है। क्या होता है? सभी देवी देवताओं का राजीपा होता है, इसलिए हमें बहुत सारी संसार व्यवहार में हेल्प मिलती है। इसलिए ये बहुत आवश्यक चीज है। और ये अगर शायद आप लोग भूल जाओ, अगर कभी भी नहीं हो सके, स्टडी के कारण हो, तबीयत का कारण हो, कोई ऐसा व्यवहारिक कारण, लेकिन आपको हार्टिली प्रायश्चित तो करना ही चाहिए। दादा भगवान ने बताया कि भाई ये आपने सत साधन नहीं किया तो बाय हार्ट आपको प्रायश्चित करोगे तो मैं आपको क्षमा कर दूंगा, मतलब मैं जमा ले लूंगा कि आपने सत साधन किए हैं, उसका आपको फायदा मिलेगा, लेकिन उसका सही में इस्तेमाल करना चाहिए। फिर आलस आ गई, वो हो गया, टीवी देखा, फ्रेंड्स के पास बैठे रहे और हमने नहीं किया, ये किया, वो फिर माफी मांग लेते हैं। वो पोल है, क्या है? वो पोलम पोल है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। और जो भी इंसान पढ़ता है, एक्सरसाइज करता है, धर्म करता है, किसके लिए करता है? बोलो। हम जो कुछ भी करते हैं हमारे खुद के लिए करते हैं। फिर सेकेंडरी जब माँ बाप को, भाई को, पड़ोसी को, दूसरों को जो बेनिफिट मिलता है वो सेकेंडरी है, लेकिन फर्स्ट बेनिफिट किसको होता है? हमें। बोलो। पहला फायदा किसको होता है? हमें होता है। हमें। तो हमें जो फायदा होता है वो काम करना चाहिए कि नहीं? करना चाहिए। और फायदे की बात समझना चाहिए कि नहीं? समझनी चाहिए। और फायदे के लिए हमें स्ट्रांग होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए। हाँ, चलो हो जाएगा। हाँ, ओके। चलो जय सच। जय सच्चिदानंद। देखो, कुछ ही हमने बताया था ना वेकेशन में छोटी के साथ कोई तेलुगु बुक्स पढ़ने का। हाँ। तो वो बड़ी सिस्टर है, आप वो थोड़ा ध्यान रखना मांगता है ना। हाँ। इट्स नॉट योर मदर टंग, तो प्रॉब्लम होता है, तो स्टडी हार्ड करने का है, किताब पढ़ो एक्स्ट्रा। ओके। हाँ। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच। ओके। ओके प्रदीप दादा, अभी हम सुनेंगे पद विनय सिस्टर से। हाँ जी। एक मिनट। ओके। ओ वेट, एक मिनट। ओके। जय सच्चिदानंद। प्रत्यक्ष दादा भगवाननी साक्षी, एज वाक्य सुच विचके ब्रह्मानुचे दादादि। प्रत्यक्ष दादा भगवाननी साक्षी,
एज वाक्य सुच विच के ब्रह्मांड छे दादाजी दादाजीनी हाजरीમાં તારતું તે સર્વક્ષેત્ર સર્વજ્ઞ એકતા કરવાની મંત્ર ઓદે સર્વજ્ઞ એકતા કરાવી મંત્ર ઓદે સર્વક્ષેત્ર અસ્થિરતા જ્ઞાન જ્ઞાન મૂળ પુરુષ અદ્વિતીય મોક્ષદાની સામે ચાલે આપેલું કોટી જન્મે દુર્લભ છે મોટા મોટ મોક્ષ ચાર કાલમાં અલજ્ય અસંયતા જ્ઞાની પુરુષ બ્રહ્માંડોની આર પાર બારી દ્રષ્ટિ જ્યોતિ સ્વરૂપ સર્વજ્ઞ એકતા કરાવી મંત્ર ઓમ પ્રત્યક્ષ દાદા ભગવાનની સાક્ષી એ જ વાક્ય સૂચવે છે કે બ્રહ્માંડ છે દાદાજી ક્ષેત્રમાં વિધેયતા ચાલી રહી ચર્ચા સિમંદર સ્વામીની સભા ગયા દાદા अन्य क्षेत्रे तीर्थ करो हर के जोई दादा मुख अक्रमिक मोक्षदानी चढ़गलुकी धर्म मुख कणियली सड़ेलाમાં જોઈ જાને સાપ કરે અલૌકિક સિદ્ધ મંત્રાશીલ મહેશ્વરાદિ પ્રત્યક્ષ દાદા ભગવાનની સાક્ષી એ જ વાક્ય સૂચવે છે કે બ્રહ્માંડ છે દાદા દાદાજીની હાજરીમાં તારતો તે સર્વ ક્ષેત્ર સર્વજ્ઞ એકતા કરાવી મંત્ર ઓમ જય સચિદાનંદ जय सच्चिदानंद। बहुत बहुत बढ़िया पद निकाला, बहुत बढ़िया आपने गाया। आपको गुजराती नहीं आती ये तो भी वेरी गुड। विशाल, ये मालूम पड़ गया क्या है पद में? कौन सा वाक्य दादा का बहुत इम्पोर्टेंट है? प्रदीप दादा थोड़ું અંદર સમજાવજો હિન્દીમાં। એટલે આ પદમાં એવું કે છે हिंदी हिंदी। अच्छा, ये पद में ये कहना कविराज की जो भावना है वो लिखी है अंदर, उनको जो समझ में आया कि सर्वकाल में मतलब द्वापर त्रेता सतयुग और वो उस समय में जो धर्म था और जो धर्म में आगे बढ़ने का रास्ता था, लेकिन ये असंयता मतलब संसारी वेश में इस काल में हमें दादा भगवान का प्राकट्य हुआ और हमें सब मार्ग मिला। और दादा की जो दशा है, उनकी जो ज्ञान है, जो प्योरिटी है, और उनका जो संसार के साथ में उनको 1 घंटे में जो आत्मा की अनुभूति कराते थे, और ऐसे पुरुष थे कि संसार में होते हुए भी वो निरंतर आत्म स्वरूप में रहते थे। और सिमंदर स्वामी भगवान की सभा में भी दादा की भक्ति हो रही है। एक ऐसे दादा भगवान, तो ये ऐसा होता नहीं है, लेकिन ये 11th वंडर ऑफ द वर्ल्ड है, 11वां आश्चर्य है। इसीलिए हमें दादा की बातें, दादा का विज्ञान बहुत समझने जैसा है, क्योंकि ये दादा का ऐसा ज्ञान है जो हर संजोग में हमें स्थिर रखता है, खुद की गलती दिखाता है, प्रतिक्रमण करवाता है और निश्चय भी करवाता है कि दूसरी बार ऐसी गलती नहीं करनी है। लेकिन ये ऐसा हुआ नहीं था कभी, क्योंकि संसार में
जो संसार त्याग के बहुत सारे ज्ञानी साधु संत पुरुष सत्पुरुष हो गए, लेकिन 1 घंटे में कृपा से आत्मा की प्राप्ति होवे, और मिलने वाला जो ज्ञान लेने वाला है उनके अंदर इतनी सारी कमजोरियां और कचरा पड़ा है, फिर भी आत्मा प्रकट हो जाता था। तो ऐसे दादा भगवान, उसकी क्या समर्थता होगी, उन्होंने क्या भावना की होगी। और इतना ही नहीं, लेकिन वो ऐसे सादे सिंपल रहते थे कि देखते ही किसी को पता ही नहीं लगे कि ये ज्ञानी पुरुष है और ये भगवान जैसे है। बहुत कम लोगों को समझ में आता था। अपने जैसे सादे सिंपल, इतनी समर्थता होते हुए भी, क्योंकि ईगोलेस पुरुष मिलना मुश्किल होता है, जिसमें क्रोध मान माया लोभ नहीं है, ऐसे पुरुष का दर्शन से ही पाप भस्मीभूत हो जाता है। तो ये दादा भगवान खुद खुद के स्वरूप में रहते थे और दूसरों को खुद का स्वरूप की अनुभूति कराते थे। तो ऐसे दादा भगवान के लिए जो कविराज ने जो लिखा है, ये सब सर्व क्षेत्र आश्चर्य का ज्ञान ज्ञान मूल पुरुष, मतलब कि इस ब्रह्मांड में 15 क्षेत्र है, लेकिन ये संसार में रहते हुए भी, व्यापार बिजनेस करते करते भी आत्मा की अनुभूति, आत्मा में रहना और दूसरों को सिर्फ कृपा से आत्मा की प्राप्ति कराना, ऐसा संभव नहीं है। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। ये तो इसीलिए तो न भूतो न भविष्यति लिखा है। तो हमें जो अगर हमारा काम निकालना है, हमें खरेखर परमानेंट सुख की अनुभूति करनी है, तो एक ही शब्द समझने जैसा है, जो ज्ञानी पुरुष ने कहा है वही करना चाहिए, वही करने का निश्चय करना चाहिए। उन्होंने जो किया वो अपने को करने का नहीं है, उन्होंने जो कहा वही करना है, उनका काम हो जाएगा। सिमंदर स्वामी इस भरत क्षेत्र में, अपनी भरत भूमि में कोई अरियन भगवान नहीं है, लेकिन दादा भगवान की समर्थता देखो, उनकी करुणा और कृपा देखो। जो महाविद्य क्षेत्र में विचरते हैं, ऐसे सिमंदर स्वामी भगवान के साथ, अरियन भगवान के साथ दादा भगवान ने अनुसंधान करवाया है। इसीलिए तो नमस्कार विधि में 40 बार नमस्कार बताया है। और सिमंदर स्वामी के साथ भी दादा का ऐसी सिस्टम है, जो सिमंदर स्वामी ने पूरे खुद के सब पावर दादा को दे दिया है। तो ये तो कैसे दादा होंगे, वो वितरागों को कितने सिंसियर थे, वो कैसे व्यवहार में भी उनका जीवन कैसा था। जो मुझे मिला उनको लाभ होना चाहिए, नहीं तो मुझे मिला उनको फायदा क्या हुआ उसको। वो विज्ञान पहले भी दादाजी ऐसे थे। और आज कलयुग के प्रभाव में इंसान क्या सोचता होगा कि मुझे फायदा होना चाहिए। दादाजी बचपन से ही जो मिलता था, जो भी उनको मिले उनको फायदा होना चाहिए। पूरी जिंदगी उन्होंने पूरा सुख, पूरी सब चीज उन्होंने लोगों के लिए लुटा दिया। और ये 50 साल की उम्र में सूरत के प्लेटफॉर्म पर दादा भगवान एम पटेल के अंदर जो दादा भगवान का प्रागट्य हुआ, तो उन्होंने वो भी ऐसा संयोग भावना की थी कि जिन्होंने कोई भी तरफ नहीं, त्याग नहीं, कुछ नहीं, ज्ञाति नहीं, जाति नहीं, कैसा भी हो, लेकिन जो उनको मिलता था उनको 1 घंटे में उनको खुद का स्वरूप की अनुभूति करवाते थे। ये दादा भगवान है। तो हमें जितनी हमारी समझ में आवे इतनी दादा की भक्ति, दादा की आज्ञा, उन्होंने जो चरण विधि में दिया है, नमस्कार विधि, सब
वो सब हमें जितना हो सके इतना सिंसियरली हमें उनका पालन करने जैसा है, अलावा कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। क्योंकि जब प्रकट होते हैं तो उनकी पहचानना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए हमें ये पूर्वे की कुछ पुण्य होगी तो हमें ये सब जानने को मिला है, सुनने को मिला है, सब बहुत सारा फायदा हुआ है, सत्संग मिला है। तो ज्यादा तक हमें कुसंग से दूर रहना चाहिए। कुसंग इतनी डेंजरस चीज है, वो हमारे सत्संग को खा जाएगी। तो जो दादा की भक्ति करता है, जो दादा की विज्ञान समझता है, जो दादा के ज्ञान में पुरुषार्थ में पड़े हुए हैं, जो प्योरिटी के भी पीछे पड़े हैं, बहुत सारे जो भी वो उनका आज्ञा का पालन करते हैं, ऐसे जागृत पुरुषों के संग में रहना बहुत जरूरी है। दादा भगवान खुद कहते हैं कि जागृत पुरुषों के संग में हम रहेंगे तो हमारी भी जागृति बढ़ती जाएगी। जैसे आप पढ़ते हो तो जो कोई स्टूडेंट्स पढ़ने में बहुत रस रखता है, इंटेलिजेंट है, उनकी दोस्ती रखोगे तो आपको पढ़ने में मजा आएगा। और जो घूमता रहता है, मस्ती मजाक करता रहता है, ऐसे उनके साथ रहोगे तो आपका लेवल डाउन हो जाएगा। क्योंकि हमारे में इतनी शक्ति नहीं है कि कैसे बैलेंस करना है, लेकिन कर सकता है आदमी। लेकिन हर चीज की इफेक्ट होती है। क्या होती है? एक बार जो हमें मौज मजा करने का, मस्ती करने का इंटरेस्ट पड़ जाता है, उसमें से सुख मिलता है, सीख लगता है। सुख है नहीं, लेकिन सुख लगता है तो धीरे धीरे वो आदत हो जाती है। और इससे उनके कारण फिर हम, हमारा जो ध्येय है, इससे हम उल्टे रास्ते पे चले जाते हैं। इसलिए हमें दोस्ती रखनी है, कुछ भी करना है तो खुद सोच समझ के साथ करने जैसा है। इसीलिए दादा भगवान की भक्ति, दादा का नाम, दादा भगवान ने तो यहाँ तक बताया है कि आप असीम जय जयकार बोलोगे तो भी आपका काम हो जाएगा। लेकिन मैं सिर्फ इतना ही एक शब्द में आपको बताऊंगा कि दादा भगवान ने जो कहा है वो करने जैसा है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। तो खुशी, मोनिका, ये हाँ प्रदीप दादा ने बोला, मोनिका, हाँ खुशी, हाँ। कुसंग का क्या मीनिंग होता है? सुनाई देता है? क्योंकि मेरा इंटरनेट वीक लगता है। प्रदीप दादा ने बोला कि कुसम से दूर रहने का। कुसंग क्या मीनिंग क्या होता है? क्वेश्चन जो हम जिसके साथ रहते हैं वो, अगर मेरी फ्रेंड एक अच्छी पढ़ती है और वो टॉपर है क्लास का, तो मुझे भी अच्छे लगा, मुझे भी अच्छी लगेगी, मुझे भी पढ़ाई करने में मन आएगा, उसका वैसे ही रंग लगता है। और अगर वही ऑपोजिट में हुआ तो वो कुसुम कहलाता है। आपका फ्रेंड्स कैसे है कुछ? मेरी फ्रेंड्स टॉपर है सर। कितने फ्रेंड्स है आपके? फास्ट फ्रेंड्स? ये क्लास में सारे। नहीं, ऐसे बाद में, क्लास के बाद। क्लास के नहीं, आपके बेस्ट फ्रेंड्स कितनी है? वो दो ही है। दो ही है? कैसे है? सब ठीक है सब स्टडीज में? दोनों ही स्टडीज में ठीक है। हम्म। दोनों ही अच्छे मार्क्स लाते हैं। ओके, मोनिका, आपका फ्रेंड्स कितना है? बेस्ट फ्रेंड? मेरे तीन फ्रेंड्स हैं और वो तीनों ही टॉपर हैं, और
मैं भी साथ में पढ़ाई करती हूँ उनके साथ। तो आपके साथ पढ़ाई करती है? हाँ, हम जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर करते हैं और ओ, साथ में ही वेरी पढ़ाई। वेरी गुड, वेरी गुड। तो कुसंग का क्या मीनिंग होता है, वो पूछो प्रदीप दादा। इफ यू डोंट नो तो पूछने का। यू नो एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ कुसंग? नहीं, खुशी। exactly। हाँ तो पूछो नहीं, प्रदीप दादा, प्रदीप दादा को पूछो। प्रदीप दादा, कुसुम का एग्जैक्टली क्या मीनिंग है? कुसंग से पहले हमारा ध्येय चुका देता है। हमारा जो पढ़ाई के प्रति जो सिंसियरिटी है, जो इंटरेस्ट है, वो धीरे धीरे कम होता जाता है। दूसरी ट्रैक पे इंटरेस्ट डेवलप होता जाता है। फिर धीरे धीरे कुसंग में झूठ का सवाल आता है। झूठ बोलने की शुरुआत होती है। फिर धीरे धीरे चीट करने का होता है। शुरू शुरू में भय लगता है। फिर अगर कुसंग में अगर भय चला गया, अगर समझो तो वो अपनी आदतों को फुलफिल करने के लिए फिर वो त्रागा करता है। मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मुझे नहीं जाने दिया, मुझे वो नहीं किया तो मैं वो नहीं करूंगा। सब कंडीशनल रखता है और सबको भड़काता रहता है। क्या करता है? भड़काता रहता है। हाँ। और उनको हर चीज में फिर उसकी बुद्धि जो है वो सब सेटिंग करती रहती है। सेटिंग समझ में आता है ना? सेटिंग मतलब क्या होता है? मम्मी को कैसे बात बताना, जो है वो पूछे तो उसको कैसे उल्टा सुल्टा करने का, वो पूरी योजनाबद्ध होता है। क्या होता है? क्योंकि वो वीकनेस को फुलफिल करने के लिए, उसको एंजॉय करने के लिए वो पूरा का पूरा नेगेटिव वाली सिस्टम डेवलप होती जाती है। थोड़ा बहुत समझ में आया? हाँ। और अगर कोई पूछे तो एज इट इज जवाब नहीं दे सकेगा आदमी। क्वेश्चन का मतलब क्या होता है? एज इट इज जवाब नहीं दे पाएगा, क्योंकि उसको डर लगता है। क्या लगता है? उसको बाइट होता है कि मेरा क्या होगा। वो बहुत डेंजरस चीज है, हमें जान के रखने का। और उसका थर्मोमीटर है, उसका थर्मोमीटर ये है कि पढ़ाई में से हमारा चित्त, हमारा इंटरेस्ट डाउन होता जाएगा। समझ में आया? हाँ। और दूसरी चीजों में इंटरेस्ट डेवलप होता जाएगा। उसमें मस्ती मजा आती जाएगी। समझ में आया? हाँ। तो हमें बहुत कॉर्नर, हर कॉर्नर से देख लेने का कि हम निर्भय रहते हैं कि डर लगता है। जो खुद के ध्येय में, प्योरिटी में, सिंसियरिटी में जो सिंसियर है, मतलब जिसका जीवन ट्रांसपेरेंट है, उसको डर लगेगा? नहीं। डर लगेगा? नहीं। भगवान से भी नहीं डरेगा आदमी। इसीलिए दादा भगवान ने बताया कि एक बार अगर कुसंग लग गया तो उसके जो दाग होते हैं, वो दाग निकालने में कितने अवतार चले जाते हैं। इसलिए दादा भगवान हम सभी आपता पुत्रों को कहते थे कि आप लोग कुसंग से दूर रहना। क्या बताते थे? कुसुम से कुसंग दूर से, रहना। दूर रहना। हाँ,
हमारे ध्येय को छिन्न भिन्न कर देगा वो। हमारी तंदुरुस्ती, हमारा माइंड, मतलब सोच, हमारा बिहेवियर, सब कुछ खलास। खाने पीने की आदत खलास। आपको समझ में आया? हाँ। हम्म। बहुत डेंजरस चीज है। इससे तो कैंसर अच्छा है। कुसंग से अच्छा कैंसर है। कैंसर में आदमी को क्या होता है कि एक अवतार का उनका मरण हो जाता है, लेकिन कुसंग में अनंत अवतारों का मरण खड़ा हो जाता है। जन्मने का, जन्म लेने का, मरने का, और ऐसे ही लोग मिलते रहे। जैसे आपको एग्जाम्पल बताऊं कि स्मोकिंग करना वो क्या है? अच्छी चीज है? नहीं। ड्रिंकिंग करना अच्छी चीज है? नहीं। होटल में खाना अच्छी चीज है? अटक नहीं। गए। पानी पूरी बार का अच्छा लगता है। हमें जितनी समझ और जानकारी होगी, इतना हम सलामत रहेंगे। बस इतना ही बात है। बाकी हर दुनिया में जितने भी चीज है, उनकी जगह पे वो सही है। लेकिन मेरे लिए कितनी सही है, कितनी राइट रॉन्ग है, वो हमें डिसाइड करना है। दुनिया तो ऐसे ही प्रवाह में चलती रहेगी। समझ में आया? हम्म। बोलो रत्नी भाई साहब आवे। नहीं, बराबर। अभी मालूम पड़ गया ना कुसुम का है। हाँ। तो आपको आपको को एग्जामिन करने का हाँ। क्या कुसंग है, वीकनेसेस क्या है, निकाल देने એમને का। કહી There દો is a- કુસંગની અસર એ છે કે ભણવા બેસશો ને તો વાંચવામાં દિલ લાગશે નહીં, એ કુસંગની ઇફેક્ટ છે, કહી દો એમને। ये कुसुम की इफेक्ट बोलते हैं क्या होगा कि आप पढ़ने बैसेगा तो कुछ चीज पढ़ने में नहीं होगा वो कुछ। घर में रहने का इंटरेस्ट कम हो जाएगा। घर में खाने का इंटरेस्ट कम हो जाएगा। मामा मामी से मम्मा मम्मी पापा के प्रति अटैचमेंट कम होता जाएगा। तो कुसंग से तो फायदा ही हुआ ना। नहीं। है, आप किससे डरते हैं? मम्मी पापा मामा मामी? पापा से। डरता है ना, जो डरते हैं ना तो बाद में झूठ बोलेंगे। यू नो, पापा कुछ पूछेगा तो आप या, सच्ची जवाब नहीं आप। उन्हें कहा आप किसी से नहीं डरते? नहीं, जो आता है कह देती हूँ। हाँ। जो भी आता है मन में कह देती हूँ मम्मी से। मुझे ये पसंद है, मुझे वो करना है। नहीं, वो तो अच्छा नहीं है। बस वो कह दे। हाँ, मम्मा पापा विथ कैसे रिस्पेक्ट, कैसे? क्या बोला प्रदीप दादा? विथ रिस्पेक्ट बात करना चाहिए। हाँ। आ, बात करने का सबको राइट है, लेकिन बड़ों के साथ हो, कोई भी हो, विथ रिस्पेक्ट वो हमारी क्वालिटी है। क्या है? रिस्पेक्ट करती हूँ। तो इसलिए सोचना पड़ता है पापा मम्मी के साथ जैसे बात करते हैं तो रिस्पेक्ट से ऐसे नहीं बोले नहीं पसंद है नहीं पसंद है ऐसे ऐसे नहीं। नहीं, वो क्यों नहीं खाने के पसंद है वो बाद। भी बता, क्यों नहीं पसंद है वो भी बताना मांगता है ना। वो रिस्पेक्ट की बताती बात है। पापा आपने ये बोला पर हमको पसंद अच्छा नहीं लगा बिकॉज लाइक दिस, तो बाद में पापा एक्सप्लेन करेगा ना। हूँ। हाँ। हाँ। हाँ।
हाँ तो वो दैट इज वेरी इम्पोर्टेंट। और खुशी, यू टू बी हाँ फ्रैंक। अब तो दुकान चलाती है, पप्पा के साथ तो फ्रैंक होना ही बनता है। पप्पा मम्मी से डरने का नहीं होता, फ्रैंक होते हैं। और रिस्पेक्ट, ये दो होगा तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। राइट प्रदीप दादा? हम्म। ओके, ये बहुत अच्छा हुआ, अब दोनों अकेले हैं तो ये वेरी गुड सत्संग हुआ। प्लीज ये पोर्शन हम आई विल ट्राई टू कट एंड भेजेगा आपको। कभी कभी बोर होता है, कभी कभी तो ये पोर्शन जरा देखने। ओके, ये सत्संग के बाद ये बातें हुई ना, फ्रेंडशिप और कुसंग का। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट आपके लाइफ के लिए। अभी तो आपका जो मिस्टेक्स है, ये टाइम है सुधारने का, क्योंकि आप तो पुत्र आपके साथ है। दैट इज द बिगेस्ट एसेट अपने पास है। ठीक है, हाँ। हाँ ओके, हाँ। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। ओके दीपक आनंद जी। अनम्यूट कीजिए। मारे अनम्यूट करो। हाँ करता सुनील, हूँ भाई। जय सच्चिदानंद। जय सच्चा बोलो। हाँ बस, हाँ આપણે बराबर। હમણાં આખા દિવસના પુરુષાર્થમાં 5 ઇન્દ્રિયોના કર્મફળ સ્વરૂપી ભોગવટા જે છે એ 9 કર્મનું ફળ છે। 5 ઇન્દ્રિયોથી જે ભોગવટો અનુભવમાં આવે છે તે આપણે શરૂઆતમાં સ્પર્શ લીધું, પછી સ્વાદ લીધું, હમણાં હવે નાકનું છે, ગંધ, દુર્ગંધ, સુગંધ, એટલે આ 3 ને ભેગું કર્યું છે। એ કેવી રીતે એના ભોગવટામાંથી આપણે પસાર થવું પડે છે અને ત્યાં આપણે અતિન્દ્રિય જ્ઞાનથી આ ઇન્દ્રિય જ્ઞાનને મને ગમ્યું, મને નથી ગમ્યું, એની જે ખેંચાખેંચી ચાલે છે, અસરો થાય છે, આક્ષેપો થાય છે, તમારા લીધે આમ થયું, તમારા લીધે તેમ થયું, પણ આ બધામાં ભોગવટો કર્મનું ફળ સ્વરૂપે છે। સામાં તો ખાલી નિમિત્ત જ બને છે અને ત્યાં આપણે એ જાગૃતિથી ઇન્દ્રિય જ્ઞાનના ભોગવટાને અતિન્દ્રિય જ્ઞાનથી જોઈને, બંને જ્ઞાન જ છે, બંને જ્ઞાન છે। તો કે આ ઇન્દ્રિય જ્ઞાનને શું કીધું? તો કે સ્વાભાવિક જ્ઞાન નથી, એ વિભાવિક જ્ઞાન છે, અને અતિન્દ્રિય જ્ઞાન એ સ્વાભાવિક જ્ઞાન છે, જેમ છે તેમ। એટલે એ રીતે જોતા આપણને ઇન્દ્રિય જ્ઞાન અને એનાથી આવતા ભોગવટાથી અને ભોગવટાની અસરમાંથી આપણે મુક્ત થતા જઈએ છીએ। એટલે શું કહેવાય, ફીલ થયું ને ગમ્યું ના ગમ્યું, સ્વાદ ગમ્યું ના ગમ્યા, ના ગમ્યા, સુગંધ ગમી ના ગમી, એ બધું જે થાય છે, જેમ એમ કીધું છે કે ગમે તેટલી પણ ગંધ હોય કે દુર્ગંધ હોય, બાંદરાની ખાડીમાંથી ગાડી પસાર થાય ત્યારે બધા નાક બંધ કરતા હોય, જ્ઞાની પુરુષ નાક બંધ કરતા નથી અને એમને અસર થતી નથી। પેલા નાક બંધ કરે છે, અસર થાય છે, બૂમો પાડે છે ને ત્યાંથી પસાર થાય ત્યારે દર વખતે આ થાય। તો કીધું કેમ કેમ જ્ઞાની પુરુષને અસર નથી થતી? તો કહે છે કે એ ઇન્દ્રિય જ્ઞાન અને એના એ આવતા ભોગવટાને પોતે જોવા સ્વરૂપે રહીને સારી રીતે છૂટા રહીને જુએ છે। એટલે એનું આગમન ખબર પડે, એન્ટ્રી ખબર પડે, એ વધે તે ખબર પડે, ખૂબ વધ્યું એ ખબર પડે, ઉતર્યું એ ખબર પડે અને જતું રહ્યું એ ખબર પડે। એટલે ઇન્દ્રિય જ્ઞાનના ભોગવટા અને એનાથી આવતો ભોગવટો અને એની અસરો એ આવન જાવન વાળી છે અને આપણે જોનારા કાયમના અતિન્દ્રિય જ્ઞાન વાળા, ને એનો અનુભવ આખો એક લેવલનો સૂક્ષ્મતા એ બહુ સરસ થાય છે। તો તમે પ્રદીપાનંદજી એના વિશે થોડી
તમારા શું કહેવાય સમજણ અને એનો સ્વાધ્યાય કરો. જય સચ્ચિદાનંદ. સુગંધ અને દુર્ગંધ એ દ્વંદ્વ વાળો શબ્દ છે અને આપણે પોતે દ્વંદ્વાતીત છે. જો આપણને જ્ઞાન મળ્યું હોય તો પછી સુગંધ અને દુર્ગંધ બેમાંથી પડીને એને ખાલી ગંધ જ કે વિતરાગો, એવું દાદા ભગવાન કે છે. એને જે વિશેષ રૂપે જે ગંધ અને સુગંધ ને દુર્ગંધ છે એવું ના હોય, પણ એ દ્વંદ્વ વાળો શબ્દ છે અને જ્ઞાની પુરુષ દ્વંદ્વાતીત હોય. અને આપણે પણ આ બધી વસ્તુને જો પોતે પોતાના સ્વરૂપમાં હોઈએ, એટલે કે જાગૃતિ હોય અને જાગૃતિ હોય ના ઉપયોગ હોય, તો પછી આ બધી સમજણ કામ કરે કે આ કોને સુગંધ આવી, હું કોણ છું, કોને ગમ્યું, હું શુદ્ધાત્મા છું, પ્રદીપને ના ગમ્યું, પ્રદીપને ગમ્યું. એટલે ત્યાં છૂટાપણાની જાગૃતિ હોય અને એ જાગૃતિ હોય, ઉપયોગ હોય, એટલે આપણે ત્યાં આપણને છૂટાપણાનો અનુભવ થાય. અને ત્યાં આખી એની જે પ્રોસેસ છે, કારણ કે અત્યારે આપણને આ કૃપાથી પ્રાપ્ત થયું છે, એ મને એવું સમજાય છે કે કૃપાથી થયું છે એટલે હજુ આપણને અંદર બધી જાતના સમજણો અને માન્યતાઓ બધી અંદર પડેલી છે કે આ સરસ છે ને આ બરાબર નથી. એટલે એ બિલીફ માન્યતાઓ કામ કરે અને તે વખતે આ જાગૃતિ હોય તો પછી એ પુરુષાર્થને દ્વારા પછી એ માન્યતા આપણી ફરે અને આપણને છૂટાપણાનો અનુભવ થાય. એટલે મોક્ષે જનાર અને મને એવું સમજાય છે કે બધું ભેગું તો થવાનું જ કર્મના ઉદયોથી, પણ એમાં એને કઈ રીતે દાદાની જે જ્ઞાન દ્રષ્ટિ છે એ કોણે મોકલ્યું, તો કે ભાઈ વ્યવસ્થિત મોકલ્યું, હું શુદ્ધાત્મા છું. પછી આ સુગંધી કોને આવી, તો કે પ્રદીપને આવી, તો કે આંખથી આવી કે નાકથી આવી, તો કે નાકથી આવી, તો કે એના સ્વભાવમાં છે. તો આપણે આપણો સ્વભાવ શું છે, તો કે આપણો સ્વભાવ જોવા જાણવાનો છે. એટલે પછી આપણે આ બધું એને બધી વાત કરી. એટલે આ બધું જે આખી પ્રોસેસ છે બધી અલગ અલગ રીતે એક વાતચીતના પ્રયોગથી છે, એમ કરતા કરતા જેવું આપણે જ્ઞાતા દ્રષ્ટા પર ધીરે ધીરે ખુલ્લું થતું જાય, એમ આપણે જોવા જાણવાનું બધું અને છૂટાપણાનો અનુભવ બધો થતો જાય. અને જે આપણી માન્યતાઓ છે એ બધી આપણને ઓળખાય છે, કારણ કે આપણે હાજર છીએ એટલે આપણને ખબર પડે કે હજુ આમાં ગમતું ના ગમતું અને રહેલું છે. મને નથી રહ્યું પણ હજુ આની અંદર આ માન્યતા પડી છે અને એ માન્યતા છે ને એ મનની અંદર ગ્રંથિ સ્વરૂપે પડેલી છે. એટલે શું છે તો કે એ ગ્રંથિ ફૂટે પછી આ બધી આ બુદ્ધિ બધું એને છૂતાછૂત કરે. એટલે આ બધું આખી જે અંતસ્કરણના લેવલ પર બધું જે ચાલી રહ્યું છે, એ જેમ જેમ આપણને જ્ઞાની પુરુષની કૃપાથી આપણો નિશ્ચય મજબૂત થતો જાય, આપણું આ વિજ્ઞાન આપણને સમજાતું જાય, પછી એનો પ્રેક્ટિકલ થતો. પ્રેક્ટિકલમાં તો કરવાનું કશું છે જ નહીં, કારણ કે કુદરતી રીતે બધું બનતું હોય છે. એક વાત એ આવી, જ્ઞાનીની કૃપાથી આપણો નિશ્ચય મજબૂત થાય કે આપણો નિશ્ચય હોય તો જ્ઞાનીની કૃપા ઉતરે? ના, એટલે નિશ્ચય જેટલો મજબૂત થાય ને એટલી કૃપા ઉતરે આપણા પર. કૃપાથી આપણને આજ્ઞા પ્રાપ્ત થાય, કૃપાથી આપણું સ્વરૂપ પ્રાપ્ત થાય. અને એમની કૃપા ક્યારે કામ કરે કે બહુ ભારે સંજોગ આવ્યો હોય ને ત્યારે એમની કૃપા કામ કરે પાછી. પણ આપણે શુદ્ધાત્મા થયા પછી આ સત્સંગમાં રહેવાથી આપણો નિશ્ચય થાય કે ના, ખરેખર હું શુદ્ધાત્મા છું જ, તો પછીથી એ નિશ્ચય મજબૂત જ થતો જાય. આજ્ઞામાં રહેવાનો આ તેને જેમ જેમ વિજ્ઞાન સમજાતું જાય એમ બધું મજબૂત થતું જાય. અને એ બધું એમાં પ્રજ્ઞા શક્તિનો કેટલોક રોલ છે, કેટલો ડિસ્ચાર્જ પેલો અહંકારનો રોલ છે, એ મજબૂત કરતો જાય. કારણ કે આત્મા તો નિશ્ચય કરતો જ નથી, આત્મા તો શુદ્ધાત્મા તો શુદ્ધ જ છે, એ મૂળ જગ્યા પર છે. પણ ત્યાં સુધી પ્રજ્ઞા શક્તિ ચેતવ કરે, જાગૃતિ એને વાળ કરે. ખ્યાલ આવે ને, એની આખી એક સિસ્ટમ છે એની આખી. તો જેટલો નિશ્ચય મજબૂત થાય અને આપણે એટલા સિન્સિયર રહીએ તમને કૃપા ઉતરે છે. અને કૃપાનું ફળ એ છે કે આપણને મુક્તતાનો અનુભવ થાય,
આપણો ધીરે ધીરે આપણો પોતાનો પરમાનંદનો સ્વાદ આવે. જબરજસ્ત વસ્તુ છે આખી. તો કૃપા તો બધાને અનુભવથી આવતી જ હોય એમ. અને સૌથી મોટામાં મોટી વસ્તુ છે કે કૃપા હંમેશા છે ને દરેક જગ્યા પર નિર્દોષ છે એ સાબિત કરીને ઊભું રહે છે. શું છે એ બહુ મોટો પોઈન્ટ છે એમનો. કારણ કે કોઈ પણ પરિસ્થિતિ આવે તો એની અંદર કોઈ એને કરતા દેખાતું નથી, એ બહુ મોટી વાત છે. એટલે એક ભાગ કરતા દેખાડે છે, એ જૂની માન્યતા વાળો ભાગ છે. અને અંદર અકર્તા ને નિર્દોષ છે એ જે સાબિત કરે છે, જે અંતરાત્મ દશાએ કરીને, એ આખી આ દાદાની કૃપાથી બનેલી વસ્તુ છે આ. એટલે બે વસ્તુ સાથે ચાલે છે. એટલે કે અજ્ઞા શક્તિ એનું કામ કરે છે અને આ બાજુ પ્રજ્ઞા શક્તિ પણ એનું કામ કરે છે. એટલે આ ઘન દુર્ગંધ તો એક શું છે કે ભોગવટો, એટલે કે વસ્તુ ભેગી થઈ, એમાં તન્મયાકાર થયો, ગમતામાં તન્મયાકાર થઈ ગયો, તો એ એટલું એને પોતાનું સુખ આવરાય. શું થાય? કારણ કે સ્થૂળ સંજોગો, સૂક્ષ્મ સંજોગો બધા પર છે ને પરાધીન છે. શું છે? એટલે એ એને ખબર પડી જવી જોઈએ. જો જાગૃતિ વધતી જાય, પ્રયોગે કરીને જીવન જીવતા હોય તો એને બધી ખબર પડે ધીરે ધીરે. એને એના પ્રજ્ઞા પ્રકાશમાં બધું ખબર પડે એને કે ભાઈ ઓ આ તો સેન્ટની સુગંધ આવી, પછી આ રોજની આવી, પણ આ જ્ઞેય છે, હું જ્ઞાતા છું, આ પ્રદીપને સુખ લાગ્યું, તો આપણે બધું પૂછીએ કે ભાઈ હું તો અનંત સુખ વાળો છું, તમને આમાં કેમની મજા આવી ગઈ? ખ્યાલ હોય ને? પણ એમાં જે માન્યતા હોય, એની બિલીફ હોય કે આ સરસ છે, એવું ચાર્જ કરેલું, એ અત્યારે આ ડિસ્ચાર્જ થયું. પણ ડિસ્ચાર્જ વખતે એ પોતે છૂટો રહે તો એ નિજરા થઈ જાય આખું, એ અનુભવ આપીને જાય. એટલે મને આવું સમજાય છે દાદાની કૃપાથી કે આખો જે પુરુષાર્થ ધર્મ પ્રાપ્ત થયો છે એ માત્ર ને માત્ર એક ઇન્દ્રિય પૂરતો નહીં, પણ આખા મન વચન કાયાના ખૂણે ખૂણે જે બી અંદર બધી પરિસ્થિતિઓ બધી ઊભી થાય છે ભોગવટા સ્વરૂપે, જેમ કે ઠંડી લાગવી એ પણ એક જાતનો ભોગવટો છે, ગરમી લાગવી એ પણ ભોગવટો છે, પછીથી મનમાં વિચાર આવો એ પણ એક ભોગવટો છે, પછી જ્યારે જમવા બેસે તો તીખું લાગવું, ગળ્યું લાગવું એ પણ એક ભોગવટો છે, પછી શબ્દોના ભોગવટા છે. કોઈ આપણને કહે કે ઓહો પ્રદીપ આનંદજી સુખ લાગે, અને કોઈ કે જવા દો નામનું ઠેકાણું નથી, તે વખતે મેં અસર થાય. એટલે આ કાન દ્વારા આપણને ખબર પડે. પછી આંખોથી આપણને બધા પૂતગલોની અસરો થાય, એ પૂતગલોમાં ગમવાપણું થાય, ના ગમવાપણું થાય, આકર્ષણ વિકર્ષણ થાય. એ બધી વસ્તુઓ પ્રત્યે પણ બધું અંદર રાગ ને, આમ તો રાગ દ્વેષ રહ્યા નહીં, પણ એ બધું જે બધી આ ઇન્દ્રિયોથી બધી થતી ધમાસાન બધું. એટલે આ આખું જે મન વચન કાયાનું જે તંત્ર છે, એટલે આખું જે મિકેનિકલ ચેતન આખું છે, જે પાવર ચેતન, અને એમાં આપણે મૂળ ચેતન સ્વરૂપે જેટલી આપણને અંદર જાગૃતિ વર્તે એટલું છૂટાપણું વર્તાય, એટલું આપણને સુખ આયા કરે. અને એ દાદાનું વિજ્ઞાન જેમ જેમ સમજાતું જાય તેમ તેમ બહુ મજા આવે એવું છે. પછી તો નવરાશ જ ના મળે એવું છે રજનીભાઈ સાહેબ. ખ્યાલ આવ્યો ને? પણ એ બધું પછી એની પાછળ પડવું પડે એવું છે બધું આ. કારણ કે આપણને કૃપાથી પ્રાપ્ત થયેલું છે ને, એટલે અમુક રસ્તો ખબર ના હોય કે હવે આ જ્ઞાન મળ્યા પછી આપણે કેવી રીતે જીવન જીવવાનું છે. તો જો એ આપણને બધો પરિચય થાય, બધો દાદાના સત્સંગનો ને આ વિજ્ઞાન ઘેર પડતી જાય, તેમ તેમ બધું સરસ અંદર ચાલ્યા કરે, સરસ ચાલ્યા કરે. અને એમાં તો એટલે સુધી ચાલે ને કે અવકાશમાં પણ સમજો કોઈ સંજોગ ના હોય તો આપણે અવકાશમાં અંદર બધી ગોઠવણી થયા કરે. પણ આ બધું ઇફેક્ટ આપે છે. ઠંડી ગરમી એ સ્પર્શનું છે, આંખનું જે મેં તમને કહ્યું ને, એવું અંતસ્કરણના લેવલ પર પણ છે. કારણ કે અહંકાર એટલે એ શું? આપણે નથી જતા તેમાં, હમણાં નથી અચ્છા, જતા. ઓકે ઓકે ઓકે. હમણાં 5 ઇન્દ્રિય સીમિત છે. હા એમાં બસ હમણાં બરાબર. 3: સ્પર્શ, સ્વાદ અને ગંધ. ઓકે. કાનથી, આંખથી, આંખ પછી
આવતા અઠવાડિયાથી. अच्छा 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 ओके ओके सॉरी આંખ અને કાન પછી આવશે. अच्छा अच्छा એની શોધખોળ લાંબી છે, ઊંડી છે, બહુ છે. એ તો બહુ મોટે બિગેસ્ટ કલ્પ્રિટ છે એટલે એનું તો યુ આર રાઈટ, એનો ટાઈમ Yeah. લેવો પડશે બરાબર. હા, है એ કાનને કાનને આંખ આંખનો અને કાન કલ્પ્રિટ એ એનું લાંબુ છે. બહુ બહુ લાંબુ, બહુ લાંબુ લાંબુ છે. હા, બહુ લાંબુ છે, બહુ લાંબુ છે. યસ યસ. એની જ બધી ભાણગડ છે ને દીપકાજી. જય સચ્ચિદાનંદ. શું કીધું? કહું છું એની જ ભાંજગડ છે ને. અરે આંખ અને કાન સચવાયા તો તો કામ થઈ ગયું. મોક્ષ મોક્ષ મોક્ષ. યસ. જય વેરી ગુડ. સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. ઓકે, હવે આપણો ટાઈમ થઈ ગયો છે. મામા મીનાક્ષી બોલો પ્લીઝ. હા, શ્રીમંત બોલાવો પ્રદીપ દાદા. हाँ जी। नमो वितरागाय નમો નમો વિતરાગ, વિતરાગાય. नमो अरिहंताणम નમો નમો અરિહંતાણમ, હરિહંતાણમ. नमो सिद्धाणम નમો નમો સિદ્ધાણમ, नमो आयरियाणम નમો આયરિયાણમ, नमो उवज्जायाणम નમો ઉવઝાયાણમ, વજ્રાયાણમ. नमो लोये सव साहुणम નમો નમો લોય સવ સાહુણમ, ऐसो पंचन मुक्कारो એસો પંચન મુક્કારો, सव पावपणासनो સવ પાવપણાવપણો, मंगलाणम च सव्वेसीम મંગલાણમ ચ સવ્વેસીમ, परमं हवै मंगलम પરમં હવૈ મંગલમ. મંગલમ. ओम नमो भगवते वासुदेव ઓમ ઓમ નમો નમો ભગવતે ભગવતે વાસુદેવાય. વાસુદેવાય. ओम नमः शिवाय ઓમ નમઃ શિવાય. जय सच्चिदानंद જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. કાલનો પ્રોગ્રામ આખા દિવસનો પુરુષાર્થ આ જ રીતે રહેશે. 5 ઇન્દ્રિયોના વિષય, તેમાં સ્પર્શ, સ્વાદ અને ગંધના પર આપણે ફોકસ રાખ્યું છે. આખા દિવસનો પ્રોગ્રામ કાલે સવારે 6:30 પ્રાતઃવિધિ, 10:15 ગુજરાતી સત્સંગ, 4:30 કીર્તન ભક્તિની આરતી, રાત્રે 9 વાગે વર્લ્ડ વાઇડ સત્સંગ. જરૂરથી પધારજો. જય સચ્ચિદાનંદ.